خوش آمدید خوابوں کی دنیا میں جہاں ہر لمحہ جادو سے بھرا ہے۔ یہ ہے جادو نگر جہاں پریاں رہتی ہیں، خواب مہکتے ہیں اور ایک سیلون چھپا ہے سچائی کے سب سے بڑے راز کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل خوابوں کا جہاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جادو نگر کی روشنی۔ جادو نگر ایک رنگوں بھرا، خوشبوؤں سے مہکتا اور خوشیوں سے چمکتا علاقہ تھا۔ اس نگر میں خوش مزاج، ہنستی گاتی اور دل سے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی پریاں رہتی تھیں۔ ان میں سب سے نمایاں ایک خوبصورت، نرم دل اور محنتی پری تھی جس کا نام تھا روشن پری۔ روشن پری نے جادو نگر میں ایک سحر انگیز سیلون کھول رکھا تھا۔ اس سیلون میں خوشبوئیں خود بخود بدلتی رہتیں، دیواروں پر جگمگاتی تتلیاں ناچتی تھیں اور ہر شیشہ جادوئی تعریف کرتا تھا۔ جو بھی پری یہاں آتی نہ صرف خوبصورت بن کر واپس جاتی بلکہ اس کا دل بھی خوش ہو جاتا۔ جادوئی سیلون کی شہرت، روشن پری کے سیلون کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہر طرف سے پریاں آتی تھیں، کوئی اپنے پر مزید چمکدار کرانے، کوئی اپنے گالوں میں خوشی کی چمک بھرنے اور کوئی اپنی آنکھوں میں نیلے خواب جگانے۔ روشن پری ان سب کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ یہی اس کی اصل طاقت تھی، خلوص۔ وہ ہر پری کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات کی بھی مرمت دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جادو نگر میں اس کے سیلون کو بے مثال مقام حاصل ہو گیا تھا۔ حسد کی چنگاری، لیکن ہر روشنی کے ساتھ کہیں نہ کہیں اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ جادو نگر میں ایک اور پری رہتی تھی، سانی پری۔ وہ ظاہری طور پر عام سی پری تھی، مگر اس کے دل میں حسد کی آگ سلگ رہی تھی۔ جب وہ دیکھتی کہ سب روشن پری کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا دل جلنے لگتا۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود سے کہا، سب اسے کیوں پسند کرتے ہیں؟ میں اسے تباہ کر دوں گی۔ کالا جادو۔ اسی دن سے سانی پری نے خفیہ طور پر کالا جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ راتوں کو اندھیرے کمروں میں چھپ کر کالی کتابیں پڑھتی، جادوئی کیمیکل تیار کرتی اور اپنی نفرت کو طاقت میں بدلنے کی کوشش کرتی۔ مہینوں کی محنت کے بعد اس نے ایک ایسا زہریلا کیمیکل تیار کیا جو کسی بھی پری کی جلد، بال، پر سب کچھ برباد کر سکتا تھا۔ سازش کی رات۔ ایک رات جب سارا جادو نگر خوابوں میں ڈوبا ہوا تھا، سانی پری چپکے سے روشن پری کے سیلون میں داخل ہوئی۔ اس نے سیلون کی ہر کریم، ہر لوشن، ہر رنگ میں وہ خطرناک کیمیکل ملا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی اور لبوں پر ایک خبیث مسکراہٹ۔ وہ مطمئن ہو کر واپس لوٹی، دل میں سوچتی، اب کوئی اس کے سیلون نہیں آئے گا۔ صبح کا صدمہ۔ اگلی صبح پہلی پری جب تیار ہو کر سیلون سے نکلی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، پر کی چمک ماند ہو چکی تھی اور جلد پر کالے دھبے نمودار ہو گئے تھے۔ پھر دوسری پری، پھر تیسری۔ سب کے ساتھ یہی ہوا۔ جلد ہی سیلون کے باہر پریوں کا ہجوم لگ گیا۔ سب شکایت کر رہی تھیں، الزام اور دکھ۔ روشن پری، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ تمہاری کریمیں تو زہر بن چکی ہیں۔ روشن پری حیران، غمزدہ اور پریشان کھڑی تھی۔ اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دل بھر آیا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، مجھے سب کچھ چیک کرنا ہوگا۔ روشن پری نے ہر بوتل، ہر ڈبہ غور سے دیکھنا شروع کیا۔ بالآخر ایک چھوٹی سی شیشی پر اسے ایک چھوٹا سا جادوئی نشان نظر آیا۔ یہ نشان صرف سانی پری کے جادو کا تھا۔ دل بھرا ہوا تھا مگر ہمت کے ساتھ وہ فوراً عدالت پریاں کی طرف روانہ ہوئی۔ جادو نگر کی عدالت میں سب جمع ہوئے۔ روشن پری نے پورا واقعہ بیان کیا۔ عدالت کی سربراہ پری نے حکم دیا کہ جادوئی پتھر کو سچ دکھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پتھر نے سچ دکھایا اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سانی پری ہی مجرم تھی۔ سزا اور اغاظن تبدیلی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، سانی پری کو 1 سال کے لیے تمام جادوئی طاقتوں سے محروم کر دیا جائے گا اور بطور سزا اسے روشن پری کے ساتھ سیلون میں خدمت کرنی ہوگی۔ شروعات میں سانی پری کے دل میں شرمندگی اور غصہ تھا، مگر وقت کے ساتھ روشن پری کی محبت اور سچائی نے اس کے دل کو نرم کرنا شروع کر دیا۔ خاموش بدلاؤ۔ سانی پری نے جب پہلی بار بغیر جادو کے جھاڑو اٹھائی تو اس کے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ بکھرا۔ وہ جو کبھی صرف غرور سے بولتی تھی اب خاموشی سے صفائی کرنے لگی۔
रोशन परी ने कभी इसे नीचा नहीं दिखाया, बल्कि हर दिन नरमी से कहा, तुम चाहो तो सब बदल सकता है। पहली मुस्कुराहट एक दिन जब सैलोन की छूटी परीक्षाएं आई, इसके पर खराब हो चुके थे। सानी परी को हुक्म था कि वो पर साफ करे। झिझक के साथ इसने काम शुरू किया, और जब शाह ने आईने में खुद को देखा, इसकी मुस्कुराहट वापस आ गई। ये पहली बार था जब सानी परी को किसी की खुशी से खुशी मिली। बोसीदा किताब। रोशन परी ने एक दिन उसे एक पुरानी जादुई किताब दी। इसमें सिर्फ वो पढ़ सकता है जिसका दिल सच्चा हो जाए, उसने कहा। सानी परी ने मजाक समझकर खोला, लेकिन हैरत से देखा कि अल्फाज चमकने लगे। इस लम्हे इसने दिल में महसूस किया, शायद वो वाकई बदल रही है। एक नई दोस्ती और वक्त गुजरता गया। सैलोन में अब सानी परी की मौजूदगी खुशी का सबब बनने लगी। वो खामोशी से काम करती, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती और रोशन परी के साथ बैठकर नए आइडियाज पर सोचती। दोनों के दरमियान एक खामोश दोस्ती जन्म लेने लगी। तारीकी की वापसी। लेकिन दूर कोहर के जंगल में एक और साया जागा। उसका नाम था धुआं देव। वो रोशनी और सच्चाई का दुश्मन था। जब इसे पता चला कि जादू नगर में नेकी और मुआफी का चर्चा हो रहा है, इसने कसम खाई कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ख्वाबों की परेशानी। रोशन परी को एक ख्वाब आया। काला धुआं सैलोन को लपेट रहा था, परियां चीख रही थीं और आईने टूट रहे थे। वो घबरा कर जागी। दिल ने कहा, कुछ होने वाला है। इसी लम्हे सानी परी कमरे में दाखिल हुई। क्या तुमने भी कुछ अजीब ख्वाब देखा? जादू नगर में धुआं। अगले दिन जादू नगर की फिजा बदली हुई थी। आसमान सिया, दरख्तों पर राख और हवा में एक अजीब सी बेचैनी। रोशन परी ने फौरन सारी परियों को इकट्ठा किया। हमें मिलकर अपना नगर बचाना होगा। धुआं देव का हमला। रात को धुआं देव ने हमला किया। वो एक काले बादल की तरह नगर पर छा गया। इसके साथ जहरीली छिपकलियां, अंधेरे के परिंदे और साया जिन थे। सब सैलोन की तरफ बढ़ने लगे। परियां खौफजदा थीं। तब सानी परी आगे बढ़ी। मुझे रास्ता मालूम है, मैं उन्हें रोकती हूं। कुर्बानी का लम्हा। सानी परी ने एक पुराना मंत्र इस्तेमाल किया जो उसने कभी अपने जादू सीखने के वक्त सुना था। ये मंत्र सिर्फ सच्चे दिल से बोला जाए तो असर करता है। वो मंत्र पढ़ती गई और धुआं देव की फौज थमने लगी। लेकिन इस मंत्र में ताकत बहुत थी और सानी परी जमीन पर गिर पड़ी। रोशन परी ने इसे संभाला। इसकी आंखों में इंस थे। तुमने हमें बचाया। तुम अब वो नहीं रही जो तुम पहले थीं। इसी लम्हे आसमान साफ हुआ। एक सुनहरी रोशनी ने सानी परी को घेरा और उसकी जादुई ताकतें वापस आ गईं, मगर इस बार उसका दिल सच्चाई से रोशन था। नया आगाज। सैलोन पर धुआं देव का हमला नाकाम हुआ और जादू नगर में रोशनी वापस आ गई। रोशन परी ने तमाम परियों को जमा किया। आज हम न सिर्फ बच गए, बल्कि हमने एक नई बहादुरी की मिसाल कायम की है। सानी परी खामोशी से खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एतमाद था। सच्चाई की निशानियां। इस दिन से सैलोन के दरो दीवार चमकने लगे। आईने खुद बखुद साफ हो जाते, बालों की कंघियां खुशबू छोड़ती और रोशनी का रंग सुनहरी हो गया। सब जानते थे कि यह सब सच्चाई और नियत की सफाई का असर था। परियों की महफिल। और जादू नगर में एक खास महफिल रखी गई। बादशाह परी चांदनी देवी ने खुद आकर रोशन परी और सानी परी को इज्जत बख्शी। उसने कहा, एक सैलोन जहां रोशनी सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि दिलों में भी हो, वही जादू नगर का असल खजाना है। मोहब्बत का तोहफा। इस दिन एक छोटे बच्चे ने सैलोन आकर रोशन परी को फूल दिया। उसने कहा, अपने मेरी मां के बाल संवारे और अब वो रोज मुस्कराती है। रोशन परी ने फूल अपनी किताब में रख लिया। ये इसके लिए बादशाही से बड़ा इनाम था। पुराना राज। सानी परी ने रोशन परी से पूछा, तुमने मुझे क्यों बदले की बजाय दूसरा मौका दिया? रोशन मुस्कुराई, क्योंकि एक वक्त में किसी ने मुझे भी दूसरा मौका दिया था। फिर इसने एक पुराना संदूक खोला जिसमें एक टूटी हुई छड़ी थी, उसकी पहली जादू की छड़ी जो उसने गुस्से में तोड़ी थी। वफादारी का इम्तिहान। सैलोन में एक नई परी आई, नाम था निर्मला।
वो खामोश और अजीब थी, लेकिन जल्द ही सबने महसूस किया कि वो जासूस है, किसी और नगर की भेजी हुई। रोशन परी ने सबको कहा, हम उसे बेदखल नहीं करेंगे, हम इसे सच दिखाएंगे। निर्मला ने कई दिन रोशन परी और सानी परी का बर्ताव देखा। वो हैरान थी कि यहाँ कोई डांटता नहीं, सब मुआफ करते हैं और सच बोलते हैं। एक दिन इसने कहा, मैं वापस जाकर बताऊंगी, ये नगर ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई से चलता है। सैलोन का ख्वाब। और रोशन परी ने ख्वाब देखा, एक और सैलोन, दूर दराज परियों के लिए, जहां छोटे परी बच्चे सीख सकें। सानी परी ने कहा, हम मिलकर ये बना सकते हैं, अब तुम अकेली नहीं हो। उन्होंने नई जगह तलाश करना शुरू की। जादुई बाल। सैलोन में अब खास दिन पर जादुई बाल बनाए जाते जो जज्बात के रंग बदलते। अगर कोई गमगीन होता तो उसके बाल नीले हो जाते, अगर खुश तो गुलाबी। ये बाल सच बोलते थे और सैलोन सच्चाई की पहचान बन गया। दूसरा सैलोन। और बिलाखिर रोशन परी और सानी परी ने मिलकर दूसरा सैलोन खोला, सच्चाई की रोशनी के नाम से। वहां पहली शर्त थी कि सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो दिल से सीखना चाहे। जादू नगर अब सिर्फ नगर नहीं बल्कि एक तहरीक बन चुका था। पुरस्रार दरवाजा। दूसरे सैलोन के पिछले हिस्से में एक दरवाजा था जो कभी खिलता ना था। एक दिन हुआ, चलते चलते वो दरवाजा खुल गया। अंदर एक कदीम जादुई नक्शा था जिस पर लिखा था, सच्चाई के असल राज तक सिर्फ वही पहुंचेगा जो अपनी कमजोरियों को तस्लीम करेगा। खौफ का सामना। रोशन परी ने ख्वाब में अपनी पुरानी गलतियां देखीं। वो वक्त जब इसने हसद किया था, जब उसने किसी को नाहक डांटा था। वो जागी तो कांप रही थी। सानी परी ने कहा, अपने माजी से डरना नहीं, इसे तस्लीम करना जादूगर बनाता है। आईने का जादू। पुराने सैलोन के आईने में अब माजी की झलक दिखाई देती। जो भी आईने के सामने सच बोलता, इसका चेहरा रोशन हो जाता, और जो झूठ बोलता, आईना धुंधला हो जाता। परियों ने सीखा, सच बोलने से सिर्फ जबान साफ नहीं होती, दिल भी निखरता। गुमशुदा परी की वापसी। एक दिन एक कमजोर, मिट्टी से लिथड़ी परी सैलोन के दरवाजे पर मिली। इसका नाम नीलफा था। वो कई साल पहले जादू नगर से भाग गई थी। उसने कहा, क्या मुझे फिर से अपना सकते हो? रोशन परी ने उसे गिले लगा लिया, ये सैलोन दूसरा मौका देने के लिए है। नीलफा का राज। नीलफा ने बताया कि वो एक और नगर में रही जहां सिर्फ खूबसूरती की अहमियत थी, वहां दिल की आवाज कोई ना सुनता था। मैं वहां मुरझा गई। रोशन परी बोली, अब तुम यहां हो और यहां सिर्फ दिल की खूबसूरती देखी जाती है। रोशनी की मश्क। और रोशन परी ने सबको सिखाया कि सच की रोशनी बाहर से नहीं आती, वो दिल से आती है। परियों को रोज सुबह एक लम्हे के लिए खामोश बैठना होता और खुद से एक सवाल करना होता, आज मैं किस बात में सच बनूंगी? जादू का मुकाबला। जादू नगर में सालाना मुकाबला हुआ जहां सब सैलोन अपनी सलाहियतें दिखाते। रोशन परी के सैलोन में एक छोटा बच्चा दाखिल हुआ और कहा, मुझे सिर्फ एक मुस्कुराहट चाहिए, कंघी नहीं। जजेस रो पड़े क्योंकि यही असल जादू था। धोखाबाज परी। एक नई परी आई, नाम था ज़ेब्रा। वो कहती थी कि वो रोशनी की पैरोकार है, मगर असल में वो दूसरे नगर की भेजी गई थी ताकि राज चोरी करे। लेकिन जब इसने रोशन परी को नीलफा की तीमारदारी करते देखा, वो तड़प उठी। ज़ेब्रा का बदला दिल। ज़ेब्रा ने एतराफ किया, मैं आई थी राज चोरी करने, लेकिन यहां मुझे कुछ मिला, सुकून। रोशन परी ने कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम पहले ही हमारी हो चुकी हो। सैलोन में ज़ेब्रा की पहली ड्यूटी नीलफा के साथ छोटे बच्चों को मुस्कुराना सिखाना। रोशनी की जीत। साल के आखिर में जब तमाम नगर की परियां जमा हुईं तो सब ने देखा कि रोशन परी के सैलोन की दीवारों से रोशनी फूट रही है, बगैर किसी चिराग के। चांदनी देवी ने कहा, ये इस सैलोन की रोशनी नहीं, उनके दिलों की रोशनी है। पुराने दुश्मन का साया। जादू नगर में एक बार फिर खतरे की आहट सुनाई दी। जालिन। वो सिया जादूगरनी जो बरसों पहले तबाही मचाना चाहती थी, दोबारा वापस आ चुकी थी, लेकिन अब वो तन्हा नहीं थी। इसके साथ थी सच्चाई से नफरत करने वालियों की एक फौज। ख्वाब का इंतबाह। रोशन परी को ख्वाब आया जिसमें सारा सैलोन अंधेरे में डूबा था और सबकी आवाजें खामोश थीं। एक पैगाम चमका, जो सच छुपाएगा वो रोशनी खो देगा।
सुबह होते ही इसने तमाम परियों को जमा किया। सच का वादा। रोशन परी ने सबसे कहा, हम सच पर कायम रहेंगे, चाहे जो भी हो। हम जादू से नहीं, नरमी से लड़ेंगे। सब ने हाथ में हाथ डालकर वादा किया, हम दिल की खूबसूरती बचाएंगे। जालिम का हमला। एक रात अचानक आसमान सियाह हो गया। जालिम की फौज ने सैलोन पर साया डाल दिया। वो चिल्लाई, ये तुम्हारा ख्वाब खत्म, तुम्हारी रोशनी बुझ गई। लेकिन सैलोन की दीवारों से नरमी की रोशनी फूटी। नीलफा की कुर्बानी। जालिम का जादू नीलफा को निशाना बना रहा था, लेकिन नीलफा ने हंसते हुए कहा, अगर मेरी रोशनी तुम्हें अंधा करती है तो मैं अंधेरे में भी चमकूंगी। वो सैलोन के दरवाजे पर खड़ी हुई और उसकी आंखों से निकलती सच्चाई की आंखों ने जालिम को पीछे धकेल दिया। सच्चाई की ढाल। सैलोन के तमाम परियों ने अपने सच दिल से निकाल कर एक रोशनी की दीवार बनाई। जालिम का सिया जादू उनमें जज्ब न हो सका, वो पिघलने लगा। रोशन परी ने कहा, यह सच्चाई की ताकत है जो किसी जंग से जीती नहीं जा सकती, बस जानी जाती है। जालिम की आंखों में आंसू और जालिम जमीन पर गिर पड़ी। उसने हार नहीं मानी थी, बल्कि वो थक गई थी। इसने कहा, मैंने सच्चाई से डर कर नफरत अपनाई, पर अब शायद मैं भी बदल सकती हूं। रोशन परी ने उसे कहा, तुम कल से बेहतर हो सकती हो, आज से शुरुआत करो। चांदनी देवी का पैगाम। चांदनी देवी ने ख्वाब में आकर कहा, तुमने न सिर्फ अपने सैलोन को बचाया, बल्कि एक भटकी रूह को भी रोशनी दी। अब तुम्हें जादू नगर की रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। नया सैलोन, नया उसूल। रोशन परी ने ऐलान किया, अब हमारा सैलोन सिर्फ कंघी, खूबसूरती या चमक का नहीं, ये दिल की सफाई का मरकज होगा। सब ने मिलकर नया बोर्ड लगाया, जादुई सैलोन, जहां सच खूबसूरती है। नगमा सच्चाई का। एक छोटी बच्ची ने आकर रोशन परी से कहा, मैंने सुना यहां दिल चमकाए जाते हैं। रोशन परी मुस्कुराई, हाँ, आओ, तुम्हारा दिल सबसे खूबसूरत बनेगा। और यूं सच का नगमा हर दिल में गूंजने लगा। जादुई आईना। सैलोन में एक दिन एक बूढ़ी औरत आईना लाई, पुराना मगर चमकता हुआ। इसने कहा, यह आईना सिर्फ सच दिखाता है, वो भी अंदर का। रोशन परी ने इसे सजाकर सैलोन के दरमियान रख दिया। दिल का चेहरा। लोग आईने में अपना चेहरा नहीं, अपनी नियत देखने लगे। कुछ रो पड़े, कुछ मुस्करा दिए। एक लड़का बोला, मैं ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे भागता रहा, अब दिल साफ करूंगा। नन्ही परी का राज। एक छोटी परी जिसे बोलने से डर लगता था, आईने के सामने आई। आईने ने इसका ख्वाब दिखाया, एक पेंटर जो दुनिया को रंगों से भर देगा। वो पहली बार बोली, मैं मुसव्विर बनना चाहती हूं। सब तालियां बजाने लगे। रोशन परी की तन्हाई। शाम को रोशन परी तन्हा बैठी थी। सबको रास्ता दिखाया, पर मेरे अंदर भी सवाल है। चांदनी देवी की सरगोशी आई। सच की राह पर चलने वाले हमेशा अकेले नहीं होते, उनके साथ रोशनी होती है। जादू नगर का मेला। जादू नगर में पहला सच्चाई का मेला मुनक़िद हुआ। लोग अपने किस्से, अपनी कमजोरियां, अपनी सच्चाइयां बांटने लगे। सैलोन की एक कुर्सी खाली रखी गई, हर इस दिल के लिए जो बदलना चाहे। जालिम की नई पहचान। जालिम ने भी मेला जवाइन किया। अब वो सिर्फ जालिम नहीं, बल्कि नौरीना बन गई, उस सच को गिले लगाने वाली। वो नन्हे जादूगरों को रोशनी के मंत्र सिखाती। नन्ही कलियों की क्लास। रोशन परी ने सच की क्लासेस शुरू की। यहाँ झूठ बोलने की ममानत नहीं, क्योंकि जो सच सीखना चाहे वो खुद आ जाएगा। नन्ही कलियां एक एक करके खिलने लगीं। सैलोन का गीत। या हर शाम सैलोन में एक गीत गाया जाता। वो चेहरे आएंगे जाएंगे, मगर जो दिल में चमकेगा वही असल खूबसूरती कहलाएगा। लोग इस गीत के लिए दूर दूर से आने लगे। आखिरी राज। रोशन परी को चांदनी देवी ने एक आखिरी राज दिया, सच बोलना काफी नहीं, सुनना भी सीखो। इस दिन से सैलोन में एक नया कमरा बनाया गया, खामोशी का कमरा, जहां कोई सिर्फ सुन सकता है और दिल की आवाज सुनाई देती है, और सच चमकता रहा। बरस गुजर गए। रोशन परी उम्र रसीदा हो गई, मगर उसकी आंखों की रोशनी वैसी ही थी। एक नई लड़की ने पूछा, यह सैलोन कब बंद होगा? रोशन परी हंसी, जब दिल सच बोलना बंद कर दें, और वो दिन कभी नहीं आएगा। जादुई सैलोन एक ऐसी जगह बन गया जहां खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि दिल, सोच
اور سچائی بن گیا. سچ کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ شکلیں بدلتا ہے مگر روشنی بن کر ہر دل میں جگہ پاتا ہے. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی, جہاں ہر رات خواب جگتی ہے.